Hello friends, this is Aswani Sadnarju, and today we are going to start a very important topic of law of tort, that is capacity to sue and to be sued under law of tort. Means who has a right to file a suit under law of tort and against whom a case may be filed. So we can say a person whose right has been violated, that person has right to file a case against that person who violates his right. Or we can say under law of tort, usually a person who suffers injury has a right to file a case against the person who caused him harm. Any rational person, including businessmen, organization, government, and other individuals, can sue, provided that they are of sound mind and are not disqualified by law. So we can say if any person has been disqualified by law to file a suit, then that person is not allowed to file a case under law of tort. Now we are going to now we are going to discuss very important topic of tortious liability of minor under law of tort. Whether a minor may be held liable for any wrongful act under law of tort. So as like law of contract and law of crime, under law of tort, minority is no defense. Because we all are aware that under law of contract, minority is a defense, and minor may not be held liable for breach of contract because minor's contract is void ab initio, decided by Privy Council in the case of Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh. And under criminal law, there is also a defense of minority under section 82 and 83 of Indian Penal Code. Section 82 provides that if a child is below than 7 years, then that child may not be held liable for any offense, and that child is considered as a dolly incapable. And section 83, if a child is above 7 years and below than 12 years, then that child may be held liable only then if he or she is in position to understand what is the nature of his or her act and what will be the consequences of act. But likewise, contract and crime under law of tort, minorities no more defense. So we can say a minor may be held liable for the wrongful act under law of tort. And if a minor wants to file a case, then there is a procedural requirement by which that minor is capable to file a suit through next friend. There is a very important case on this very topic, that is Lynch versus Nardin. In this case, the defendant left his horse and cart unattended in a busy street. The plaintiff, who is a boy under 7 years of age, climbed on the cart and another boy led to horse on. The plaintiff fell and broke his leg. In a suit for damage, the defendant contended that the plaintiff was guilty of contributory negligence. But in this case, the court observed that to make liable a person for contributory negligence, that person is in position to understand what care or what precautions should be taken. But in this case, that boy is very small to understand what type of care or what type of precautions should be taken. So that child is not held liable for contributory negligence. A very important question arises whether parents or guardian may be held liable for the wrongful act of his or her children. Generally, a parent or guardian is not liable for the tort of his child. However,
There are some exceptions in which parents and guardian may be held liable. First, if the child is employed by his parent and that child commits any tort in the course of his employment, then parents may be held vicariously liable. But in this case, the liability is not due to parents, but this liability is as a relationship of master and servant. A parent may be also held liable if the parent will be liable if the child's tort were due to the parents negligent, or we can say if the children are in control of the parents and the parents has lost his control over the child, then parents may be held liable. If parent expressly authorized some wrongful act to do by children, then parents may be held liable. And if the parents ratified any wrongful act of his children, in that situation parents may be held liable for the wrongful act of his children. But generally parents are not liable for the wrongful act of children. Here we have to discuss a very important case law, that is Union Carbide Corporation versus Union of India. A very important and interesting question is asked whether a child who takes birth alive has right to get the compensation for those injuries which he had suffered when he is or when he or she was in mother's womb. क्या कोई बच्चा पैदा होने के बाद अपनी उन इंजरीज के लिए कंपनसेशन ले सकता है जो उसे तब हुई है जब वो माँ के गर्भ में था? तो आपको पता है यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला केस है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो लोग जीवित थे उनको तो प्रॉब्लम हुई ही थी, जो लोग जीवित नहीं थे, माँ के गर्भ में थे, मदर्स वूम में थे, उनको भी जब वो पैदा हुए हैं तो बहुत डिसेबल पैदा हुए हैं, तो कोर्ट ने कहा कि उनको भी कंपनसेशन मिलेगा। इसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट में एक टॉपिक आता है इंडिपेंडेंट एंड जॉइंट टॉर्ट फ्यूजर। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट are independent tort features and what are joint tort features। देखिए, इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीचर चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, इसमें क्या होता है कि ये हो सकता है कि इनका जो एक्ट है वो सेम हो, बट इसमें कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग होते हैं। मतलब अगर प्री प्लान नहीं है और दो अननोन पर्सन ने एक ही एक्ट किया है तो वो इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीचर्स होते हैं। अगर प्लान करके साथ में मीटिंग करके उन्होंने कोई ऑफेंस किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो वो जॉइंट टॉर्ट फीचर्स कहलाते हैं। ये हम इसलिए देखते हैं क्योंकि उनकी लाइबिलिटी अलग अलग होती है। इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीचर्स की लाइबिलिटी केवल सेवरल होती है और जॉइंट टॉर्ट फीचर्स की लाइबिलिटी जो है सेवरल और जॉइंटली दोनों होती है। मतलब ये एग्रीव्ड पर्सन के ऊपर होता है, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो सभी टॉर्ट फीचर्स पे केस फाइल करे या उनमें से किसी एक पे करे। So we can say they are severally liable for the same damage. It is about independent tort feature. Independent tort features are severally liable for the same damage due to the an independent course of action. There was a very important case, Thompson versus London County Council, and in this case it was observed that the damage is one, but the cause of action which led to the damage are two. Such tortfeasors are therefore severally liable for the same damage, not jointly. Liability of joint tortfeasors, as we have discussed earlier, when two or more persons join together for common action, then all the persons are jointly and severally liable for any tort committed in the course of such action. There were three principles in English common law with regard to the liability of joint tortfeasors। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि जब दो या दो से अधिक लोग कॉमन एक्शन में अगर कोई काम करते हैं तो उनकी लाइबिलिटी जो है वो जॉइंटली और सेवरल दोनों होती है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एक तो प्रिंसिपल्स है कि द लाइबिलिटी ऑफ रॉन्ग डूअर्स इज जॉइंट एंड सेवरल। लाइबिलिटी जो है वो कैसी होती है, जॉइंट और सेवरल होती है।
दूसरा प्रिंसिपल जो है, केस हुआ था ब्रिंसमैन वर्सेस हैरिसन। इसमें इन्होंने कहा था कि अगर किसी एक जॉइंट टॉर्ट फीजर को रिलीज कर दिया जाता है उसकी लायबिलिटी से, इसका मतलब हुआ बाकी सब भी रिलीज हो जाएंगे, चाहे जो प्लेंटिफ है वो उनसे सेटिस्फाइड हो या ना हो। थर्ड प्रिंसिपल इसमें था जो लेट डाउन किया गया मैरी ब्रदर वर्सेस निक्सन में, कि अगर जॉइंट टॉर्ट फीजर में से किसी एक से पूरा कंपनसेशन ले लिया गया है प्लेंटिफ के द्वारा, तो क्या वो बाकी डिफेंडेंट से कंट्रीब्यूट कर सकता है बाकी? तो मेरी ब्रदर निक्सन में कहा गया था कि नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन बाद में ये जो रूल्स थे ये एबॉलिश कर दिए गए बाय द लॉ रिफॉर्म्स एक्ट 1935 और सिविल लायबिलिटी एक्ट 1978 के बाद। यानी आज की करंट पोजीशन क्या क्या है वो आप समझ लीजिए। पहली चीज, ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स की जो लायबिलिटी होगी ये होगी ज्वाइंट और लायबल। दूसरी बात, अगर किसी एक ही पर्सन ने पूरा कंपनसेशन दे दिया है तो वो बाकी डिफेंडेंट से वसूल सकता है, आज की जो पोजीशन है। तीसरी चीज, जो कहा गया था खुसरो एस गांधी वर्सेस गुजदार में, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, इसमें इन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन रिलीज कर देता है किसी एक टॉर्ट फीजर को, तो इससे बाकी टॉर्ट फीजर की लायबिलिटी रिलीज नहीं होती है जब तक कि वो खुद सेटिस्फाइड ना हो गया हो सबसे। इस केस में क्या हुआ था कि द फैक्ट वाज दैट इन द सूट फॉर डैमेजेस फॉर डिफेमेशन वन ऑफ द डिफेंडेंट्स हैड टेंडर्ड एन अपॉलॉजी टू द प्लेंटिफ and the court had passed a compromise decree between the plaintiff and the defendant who tendered an apology. When the plaintiff wanted to continue the suit against the other defendant, it was contended by the defendant that the compromise decree released all other defendants from their liability. कि कुछ लोगों ने मिलकर किसी का डिफेमेशन किया, बाद में उनमें से एक ने माफी मांग ली, कोर्ट ने उनकी कंप्रोमाइज डिक्री दे दी, लेकिन जो प्लेंटिफ था उसने बाकी लोगों पे केस कंटिन्यू रखा। तो बाकी डिफेंडेंट ने ये प्ली ली कि जब एक रिलीज हो गया है तो हम सब भी रिलीज हो गए। लेकिन कोर्ट ने यही जजमेंट दिया, कोर्ट ने कहा कि इन द केस ऑफ जॉइंट टॉर्ट फीजर्स, इन ऑर्डर टू रिलीज ऑल जॉइंट टॉर्ट फीजर्स, द प्लेंटिफ मस्ट रिसीव फुल सेटिस्फैक्शन और which the law must consider as such from a tortfeasor before other joint tortfeasors can rely on accordant satisfaction। मतलब जब तक कि प्लेंटिफ खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा तब तक एक के रिलीज होने से बाकी रिलीज नहीं होंगे। और ये रूल जो है वो डिपेंड करता है जस्ट इक्विटी एंड गुड कंसाइंस पे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक इलस्ट्रेशन से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी ने मिलकर प्लान किया एक्स को असॉल्ट करने का, एंड असॉल्ट इज अ टॉर्ट। ए और बी मिलके एक्स को पीटते हैं। जब एक्स पिट रहा था उसी समय कहीं से सी और डी आ गए। न सी डी को जानता है न डी सी को जानता है। सी भी एक्स को पीटने लगा, डी भी एक्स को पीटने लगा। अब यहाँ पे सी और डी जो हैं ये होंगे इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर, जबकि ए और बी होंगे ज्वाइंट टॉर्ट फीजर। एक तो ये चीज हो गई। अब जो ए सी और डी है इनकी लायबिलिटी सेवरल होगी, यानी कि वो सी और डी पे एक साथ केस नहीं कर सकता, उसे सी पे केस करना पड़ेगा और डी पे केस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है, क्योंकि उनकी लायबिलिटी सेवरल है। अब जो ज्वाइंट टॉर्ट फीजर है ए और बी, इन पे एक्स के पास ऑप्शन है, चाहे ए और बी दोनों पे केस करे, चाहे केवल ए पे केस करे, चाहे केवल बी पे केस करे। एक चीज, मान लीजिए इसने अगर केस कर दिया ए पे केस करने के बाद ए से इसने पूरा कंपनसेशन वसूल लिया, तो अब आज का लॉ ये कहता है कि ए के पास राइट है कि वो बी से बाकी पैसा जो उसका हिस्सा है वसूल सकता है। जैसे मान लो कंपनसेशन में 1,000 रुपया इसको देना पड़ गया, दो लोग थे तो 500-500 रुपया दोनों को देना चाहिए था, तो ए ने जो पूरा 1,000 रुपया लिया है, दिया है एक्स को, तो ये बी से 500 रुपया ले सकता है। और मान लो इसी में हम देखें कि एक्स ए को माफ कर दे और बी पे केवल केस करना चाहे, बी कहे कि नहीं जब एक्स रिलीज हो गया उसे माफ कर दिया तो हमें भी हो गया, तो ए ने माफी मांगी उसे माफ कर दिया।
तो यहाँ भी खुसरो के केस में कह दिया गया है कि एक के रिलीज होने से दूसरा रिलीज तब तक नहीं होगा जब तक कि वो खुद सेटिस्फाई ना हो गया हो। और छोटे छोटे टॉपिक हमको इसमें देखने हैं, जैसे पेरेंट एंड क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी। पेरेंट और क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी में आता है कि कोई भी पेरेंट, कोई टीचर, कोई गार्जियन या कोई भी पर्सन जिसके कंट्रोल में बच्चे हैं, क्या वो उनको पनिश कर सकता है? लॉ ये कहता है कि वो उनको पनिश कर सकता है, ये उसका अथॉरिटी में होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, जैसे टीचर के लिए कहा गया है कि वो उसका जो कंट्रोल है बच्चों पे केवल वही नहीं है कॉलेज या स्कूल में, बल्कि कॉलेज या स्कूल के बाहर भी वो उनको सुधारने के लिए उनको पनिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो पनिशमेंट है वो रिजनेबल होना चाहिए और मॉडरेट होना चाहिए, यानी कि आप उस एक्ट के लिए बहुत एक्सट्रीम में जाकर पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल एक्ट। जुडिशियल एक्ट होते हैं जो जुडिशरी से गवर्न होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। इसके अलावा एक क्वासी जुडिशियल एक्ट्स होते हैं। क्वासी जुडिशियल एक्ट्स का मतलब होता है कि कुछ काम तो उनके जुडिशरी जैसे होते हैं लेकिन वो जुडिशरी नहीं होते हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, रेलवे ट्रिब्यूनल वगैरह हो गया। तो इनके कोई भी एक्ट जो कर रहा है तो एक जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट है जो इनको रिलीफ देता है। और ये कहा जाता है कि अगर कोई भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल ऑफिसर अपनी कैपेसिटी में जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल ड्यूटी के दौरान अगर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कर देता है, गलत जजमेंट दे देता है, तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, चाहे वो ये काम जो है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जाके कर रहा हो, तब भी लाइबिलिटी नहीं होगी। बस कंडीशन ये है कि उसे ये बोनाफाइड फेथ हो, बिलीफ हो कि उसे ये काम करने का जुरिस्डिक्शन है, मतलब अगर वो भूल से भी कर देगा तब भी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर मेलाफाइड प्रूव हो जाएगा, मैंसरिया प्रूव हो जाएगा तो उसकी लाइबिलिटी होगी। तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। इसमें एक और कभी कभी पूछा जाता है हस्बैंड और वाइफ के लिए, क्योंकि पहले के लॉ चेंज थे कुछ। पहले क्या था कि वाइफ के द्वारा किए गए किसी भी टॉर्ट के लिए हस्बैंड को लाइबल बनाया जा सकता था। पहले एक लॉ था कि वाइफ जो है वो हस्बैंड अगर कोई टॉर्ट कर देता था उस पर केस फाइल नहीं कर सकती थी। आज की डेट में ये सब चेंज हो गया है। आज की डेट में वाइफ हस्बैंड पे केस भी कर सकती है, एक चीज। और वाइफ के द्वारा किए गए टॉर्ट के लिए हस्बैंड को लाइबल नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अगर वो वाइकेरियसली लाइबल है तो वो अलग चीज है, वरना केवल इसलिए हस्बैंड को लाइबल नहीं बनाया जा सकता कि वो हस्बैंड है। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे जो लॉ ऑफ टॉर्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। और लेक्चर अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक्स। थैंक्स अ लॉट।